Good evening, students. Today I will start with English subject of 10th standard explanation of the poem uh, Dust of Snow, which was written by Robert Frost. Okay, and you can see in the video one picture. It is the total imagination of the dust of snow. What will be the actual scenario when the dust of snow is written by the poet? Okay, it is the beginning, and at the end of the poem, what will be the scenario and the scene that you can see in this? That poet's mood and emotion are changed as the snow fall on him, and that happened because of the crow. Okay, this is the particular imagination and the poem full scene when the particular poet had written Robert Frost. Now, moving on the explanation part. Dust of Snow is a short poem which was written by Robert Frost. He had highlighted the power of small movements to charge or to change one's mood. Here is the poem. The way a crow swooped down on me. The dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had due. These are the 8 lines which are written by Robert Frost on Dust of Snow. As you read the heading Dust of Snow, dust is what? It's a particularly snow's dust, okay? Particles, which and particles of snow, which fall down from the tree, okay, and the moment, the feelings, the situation was changed in this poem, okay, by the dust of snow, okay, that we will learn. Moving on, what is the precise and analyzation of the dust of snow, that we will do in deep now. What the Robert Frost want to say, what he had analyzed, and why he had written this poem, that first we will understand. Robert Frost had written Dust of Snow to show the powerful 8 lines of poem that captured a situation, a condition where a small event in nature can transform one's mood and outlook. जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जो पोएट है, जब वो ये 8 लाइन्स पोएम की लिख रहे थे बच्चों, तो उनके पर्टिकुलरली कैसे पर्टिकुलर आप बोल सकते हो कि क्या सिचुएशन हुई जिसके कारण पूरा उनका मूड, उनका सोचने का चेंज हो गई, ठीक है। और वो जो कंडीशन या सिचुएशन जो चेंज हुई, वो किसके कारण? इवेंट या एक पर्टिकुलरली चीज़, जैसे क्रो ने स्नो ऑफ डस्ट उनके ऊपर गिराई, जिसके कारण उनका पूरा सोचने का फीलिंग या पॉजिटिवनेस पूरी तरह से चेंज हो गया, फीलिंग्स पूरी चेंज हो गई, उनकी देखने का तरीका चेंज हो गया। नाउ in this 8 lines symbolism, 3 characters are there: crow, hemlock tree और dust of snow. crow, जो crow है वो bird है, as you know। crow को हम हमारे लाइफ में क्या कंसीडर करते हैं? crow अगर हमारे घर पे आ जाता है बच्चों, तो हम उसे नेगेटिविटी वर्कआउट करते हैं कि मेहमान आएंगे, ठीक है। या तो पर्टिकुलरली हम ये सोचते हैं कि समथिंग नेगेटिव विल बी हैपन। क्रो को हम अच्छा सिंबल मानते नहीं हैं, बैड लक और मिसफॉर्चून का सिंबल कंसीडर करते हैं।
but here it is unknowingly bring positivity in the feelings of poet. जो भी सिंबलाइज है क्रो को नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं किया है, पोएट ने इसे अननोइंगली पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट किया है. हेमलॉक ट्री, ये भी थर्ड सेकेंड कैरेक्टर है ये पोएम का. जो पॉइजनस ट्री होता है टिपिकली एसोसिएटेड विथ सॉरो, सैडनेस, पॉइजनस ट्री है, येट इट प्लेज अ रोल इन अपलिफ्टिंग द स्पीकर्स मूड. देन ऑल्सो पोएट ने हेमलॉक ट्री को प्रेजेंट किया है इस वे में कि स्पीकर का पूरा मूड चेंज हो जाता है एज द स्नो फॉल डाउन ऑन हिम ऑन हिज फोरहेड. ओके. और थर्ड जो सिंबलिज्म है वो डस्ट ऑफ स्नो है, रिप्रेजेंट्स लाइटनेस, प्योरिटी एंड अ शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव, सिंबलाइजिंग अ फ्रेश स्टार्ट और अ मोमेंट ऑफ रियलाइजिंग. जैसे ही पोएट के ऊपर डस्ट गिरती है स्नो की, क्योंकि ठंडा फील होता है, और वो उसके क्या जो भारी था उसका आधा दिन जो पूरा सैडनेस में था, डिप्रेशन में था, उसको क्या फील करवाता है, लाइटनेस फील करवाता है, प्योरिटी फील करवाता है, शिफ्ट ऑफ उसके सोचने के वे को पूरी तरह से शिफ्ट करता है, फ्रेशनेस लाता है, एक नया बिगिनिंग करवाता है कि जो हो चुका इट्स ओके, अब नया स्टार्टअप करें. तो ये थ्री कैरेक्टर्स हैं पर्टिकुलर पोएट के डस्ट ऑफ स्नो के. मूविंग ऑन फर्दर, now what is the theme and the meaning of this poem? Unexpected positivity, second nature's healing power, थर्ड रिग्रेट एंड रिडम्पशन. फर्स्ट थीम की बात करें, पर्पस या मीनिंग पोएट की पोएम की, कि अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिविटी. पॉजिटिविटी मीन्स क्रो और हेमलॉक क्या है, एक क्रो जो नेगेटिव के टर्म पे हम लोग देखते हैं, और हेमलॉक पॉइजनस ट्री है. पर ये दोनों नेगेटिव एलिमेंट को हमने पॉजिटिविटी के टर्म पे चेंज होते देखा, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोस्पेक्टिव. ओके, हाउ यू आर लुकिंग आफ्टर, आप क्या सोचते हो, आप किस सिचुएशन में कैसे आप उसको लेते हो. ये दोनों जो सिंबल थे, कैरेक्टर थे, क्रो और हेमलॉक ट्री, पोएट चाहता तो वो रॉन्ग वे में भी करता. ठीक है, पर्सपेक्टिव को पूरी तरह से नेगेटिव वे में भी ले सकता था, पर उसने क्या, उसे पर्टिकुलरली उसका रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव चेंज आया. अनएक्सपेक्टेड, जो सोचा नहीं था. सेकेंड थीम एंड द मीनिंग, नेचर्स हीलिंग पावर. नेचर के अंदर हीलिंग पावर है. इवन द स्मॉलेस्ट नेचुरल इवेंट कैन इम्पैक्ट ह्यूमन इमोशन. छोटे से छोटी मूवमेंट भी, छोटे से छोटा इंसिडेंट भी, या कोई चीज़ आपके मूड को, आपके इमोशंस को, आपके फीलिंग्स को चेंज कर सकता है, इतनी ताकत रखता है. And that is the power in the nature. That's why we are praising, we are mesmerizing. Whenever we are sad, we want the beauty, we want the a particular place where we can sit and connect ourselves with the nature. We want to be with the nature only. ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है, इमोशंस है, वो नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्टिविटी पाते हैं. और नेचर के अंदर क्यों कनेक्टिविटी हम पाते हैं, क्योंकि नेचर के अंदर इतनी ज़्यादा हीलिंग पावर्स है. थर्ड, रिग्रेट एंड रिडम्पशन. रिग्रेट मीन्स द स्पीकर हैड अ सॉरोफुल डे, बट दिस माइनर इंसिडेंट सेव्स पार्ट ऑफ इट, suggesting that hope can emerge from unliking places. Regret and redemption. स्पीकर को आधा दिन जो था, द डे विच ही हैड स्पेंड, ओके, दैट इज़ टोटली सैड, सॉरोफुल, बट जो माइनर इंसिडेंट्स हुआ, डस्ट ऑफ स्नो जो उसके ऊपर गिरा क्रो के कारण, दैट सेव्स अ पार्ट ऑफ इट एंड सजेस्टिंग दैट द होप कैन इमर्ज. और उसके बेस पे उम्मीद उसमें जागी कि अनलाइकली, जो आपने सोचा नहीं था, जो आप कोई बेस पे सोच नहीं सकते, उस टर्म्स पे भी चमत्कार होते हैं. एंड दैट इज़ पॉसिबल इन द पर्टिकुलरली सिचुएशन. उम्मीद है
ठीक है, दैट कैन बी क्रिएट, दैट इज देयर. थर्ड, टोन एंड मूड. टोन एंड मूड, जो पोएट का जो टोन था, मूड था, वाइल राइटिंग द पोएम 8 लाइन्स ऑफ डस्ट ऑफ स्नो. ठीक है, टोन की अगर बात करें तो स्टार्ट्स मेलांकोलिक बट शिफ्ट्स टू अ होपफुल एंड रिफ्रेश्ड फीलिंग. मीन्स स्टार्टअप उसने कैसे किया, सैडनेस से. मेलांकोलिक का मतलब क्या होता है, सैडनेस, सॉरोनेस, डिप्रेशन में, टेंशन में उसने स्टार्टअप किया. पर वो पोयम को कहाँ ले गए, एक होप में, होपफुल और रिफ्रेशनेस फीलिंग में लेके गए. ये पूरी तरह से एक डाउनवर्ड को अपवर्ड में कंसीडर करना, कैसे नेगेटिव को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना, वो पोएट ने इस पोएम के थ्रू उन्होंने शो किया है. अब मूड, इनिशियली रिग्रेटफुल बट एंड्स ऑन अ नोट ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड ऑप्टिमिज्म. जो मूड था वो पूरा तरह से चेंज किया, कि जो वो आधे दिन को वो जो मिस कर गंदा गया है उसका रिग्रेट नहीं कर रहा है, उसका अफसोस नहीं कर रहा है, पर वो आधे दिन बच गया उसको पॉजिटिविटी में ले रहा है, कि आधा ग्लास जो है खाली उसको नहीं देख रहा है, आधे भरे हुए को देख के आगे बढ़ रहा है, कि यस येट आई हैव एंड आई कैन मूव ऑन. मैंने पूरा दिन बर्बाद नहीं किया, मेरा पूरा दिन फिनिश नहीं हुआ, हाफ नो डाउट गया है गंदा, पर उसको सोचना नहीं है, जो अच्छा है, जो गुड है उसको देख के वो आगे बढ़ता है. ठीक है, एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन एंड आई विल टेल यू द कंक्लूजन ऑफ द पोएट, of the poet behind the poem. Frost masterfully conveys that even insignificant movements in nature can change our emotion and perspectives. The poem teaches us to find joy and transformation in the smallest of experience. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट है उसने कन्वे किया है एक मास्टर पीस के टर्म पे 8 लाइन्स में, कि जो नेचर है, नेचर के टर्म पे जो मूवमेंट्स होते हैं वो हमारे मूड्स को चेंज, इमोशंस को, देखने के नज़रिए को, पर्सपेक्टिव को चेंज करने की क्षमता, बोल सकते हो पावर्स रख सकते हैं, पावर है. The poem teaches us to find joy and transformation in the smallest of experience. जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो उस छोटी सी छोटी चीज़ आपके लाइफ में इन 24 आवर्स, दैट यू हैव टू टेक, you have to learn from it how to be happy and joyful. Okay, that only the particularly conclusion, or you can say the moral of the story that poet wants to give to the people, okay, by this poem. I hope so this poem is very much clear to you, and my explanation will helpful to you for your preparation in 10th standards, especially for poem section. Good day, have a nice day, bye.